آیت نمبر 13 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن لپیٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تم اپنے رب کے لیے نماز کو قائم کرو دونوں طرفوں، یعنی صبح اور شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی یہاں پر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ منع کر دیا کہ تم ان ظالموں کی طرف اپنے قدموں کو یا اپنے آپ کو نرم ہونے کے لیے نہ جھکاؤ۔ اگر تم نے ان کی طرف رجوع کر لیا، ان کی طرف جھکاؤ کر لیا، تو پھر اللہ سے تمہیں کوئی بچائے گا نہیں، یعنی نبی ہو کر بھی پھر اللہ تمہیں بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی تو ان لوگوں کی طرف جھک جاتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ایسے کیا ہے، کیا کرے خاندان جینے نہیں دیتا، رشتہ دار ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری سوچ میں بھی یہی چیز آتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں یعنی رسموں رواجوں یہودوں کے طریقوں پر نہ جھکو، اگر تم نے ان کی طرف جھکاؤ کیا تو تمہیں بھی آگ لپیٹ لے گی۔ آگے فرمایا کرنا تم نے کیا ہے، صبح شام نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی تہجد بھی پڑھنی ہے، اور پھر فرمایا کہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ کہا بتایا کہ کون سا گناہ؟ کہ میں نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ تم نماز قائم کرو دونوں سروں میں، یعنی رات اور دن میں، صبح کو بھی شام کو بھی، رات کو تہجد میں بھی، ساری یعنی فرض نمازیں بھی پوری کرو اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی۔ یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے اس نے نہیں کیے، انجانے میں ہوتے ہیں نا۔ جب انجانے میں گناہ ہوتے ہیں تو ان کو بخشوانے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ صبح شام 5 نمازیں پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ رات کی تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو انشاءاللہ ہماری یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو دور کر دیں گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، یعنی بہترین داستان۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا، صحابیوں نے، کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی اچھا سا قصہ تو سنائیے، کوئی بہترین قصہ سنائیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی طرف سے تھا کہ بہترین داستان اللہ تعالیٰ نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس داستان کو سب سے بہترین داستان کہہ دیا۔ ہمارے بچے جب سٹوری کے لیے ہمیں کہا کریں، اب تو یہ ہے ہی نہیں، جب سے یہ موبائلز اور پڑھائیاں ٹف آئی ہیں، بچوں کو کہانی ہی بھول گئی ہیں۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، رات کو سونے سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی کہانی سنے۔ ہم نے خود اپنی امیوں سے سنی ہوئی ہے کہ بیٹھ کے کہانی، کوئی تو کہانی سنا، جب کہتے تھے کوئی کہانی نہیں، چلے اپنی ہی کہانی سنا دے، اپنے اوپر جو بیتی وہ کہانی سنا دے بھی، آپ امی کے گھر کیسے تھے، ابو کے گھر، یعنی رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سننا یہ ایک معمول ہوتا تھا۔ جب ٹی وی نہیں تھے، جب ڈرامے نہیں تھے، فلمیں بے حیائی کے کام نہیں تھے، تو آپس میں گفت و شنید ایسے ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بہترین داستان اس لیے کہا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سٹوری سنائیں اور اس میں سبق آموز باتیں ڈھونڈیں، اور بچوں سے خود کہیں کہ میں آپ کو یہ کہانی سناتی ہوں، اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں، بہت لمبی اور بہت خوبصورت کہانی ہے۔ میں تو آپ کو مختصراً بتاؤں گی، لیکن تفصیل سے کبھی انشاءاللہ آپ پڑھیں تو اپنے بچوں کو مختصر کر کر کے سنائیں، اور ان سے کہیں کہ اس میں اپنے لیے آپ پوائنٹ ڈھونڈیں کہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز کے اوپر وہ پوائنٹ اپنا بنائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے، آپ کو اس طرح کی باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ تو خواب دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
याकूब ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे लिए कोई बुरी तदबीर करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, ख्वाब को सुनते ही समझ गए कि ये ख्वाब जो है आगे जाकर हजरत यूसुफ के लिए पैगंबरी का बायस भी बनेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले ही भाई हसद करते थे। किस बात पे हसद करते थे? कि बाप को हमसे ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, जबकि बाकी भाइयों से भी उन्हें मोहब्बत थी। लेकिन वो जब इंसान इस तरह की मनफी सोचें लाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो हमें ऐसे लगता है हर बात में वो उससे मनफी सोच। अब खाना देने लगे हैं तो वो सोच रहा होगा, देखना देखना अभी मेरे से ज्यादा इसको दिया जाएगा। वो मनफी सोच जो चल रही है, मनफी बातें जो चल रही हैं। जबकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कुछ मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे के जहन में जब मनफी सोच आ जाए तो हर बात को मनफी सोच में ही लेता है, और वो हर मामले में यही देखता है कि बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं है। तो इन बड़े भाइयों के दिल में भी यही चीज आ गई थी कि हमारे बाप को हमसे मोहब्बत नहीं बनिस्बत यूसुफ के। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या थे? छोटे थे। आप देख लें कि बड़ों ने छोटे होते हुए मोहब्बत ले ली। अब वो छोटा है तो जाहिर बात है उसी की मोहब्बत चलेगी ना। घर में जितना भी, चाहे वो मेरा अपना बेटा भी ना हो, घर में जो छोटा बच्चा होता है उससे सबको मोहब्बत होती है, सबको प्यारा लग रहा होता है। क्यों? अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने अंदाज से, अपने मामलात से। तो हर एक उसके लिए तोहफे तहफ़ भी ले लेता है कि बच्चा है, चलो दिलजोई के लिए भी उसे कोई चीज ला देते हैं। तो यहाँ से उनके ज़हन में क्या आया? मनफी सोचें आना शुरू हो जाती है कि हाँ वो ये नहीं देखते कि एक वक्त हम भी इसी उम्र में थे और इसी उम्र में, और अगर ऐसी सोचें हैं तो यहाँ माँ बाप को क्या करना चाहिए? इस्लाह करनी चाहिए। देखो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, तुम भी इस उम्र में थे, ऐसे ही तुम्हें चाचू मामू सारे उठाते थे, ऐसे ही तुम्हें लाड प्यार में पालते थे। अब उसकी बारी है, तुम तो अब बड़े हो गए हो, फिर ये जब बड़ा हो जाएगा, अगला बच्चा आएगा, उसकी बारी होगी। मनफी सोचों को फौरन रिजेक्ट करें ताकि वो बच्चे मनफी सोचों को पुख्ता ना बना लें। तो इसी तरह उनके जहन में यही बात थी कि बाप हमारा इनसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए उसको पहले ही हसद था। तो अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने भाइयों को ये ख्वाब ना बताना, वरना वो तेरे बारे में कोई तदबीर करेंगे। हजरत याकूब गैब का इल्म जानते होते तो ये बात क्यों करते कि वरना वो तेरे बारे में, यानी ख्वाब सुन लेंगे तो तेरे बारे में तदबीर करेंगे। अभी तो उन्होंने ख्वाब ही नहीं सुना था तो फिर भी तदबीर कर ली थी। क्यों की थी? हसद की वजह से। तदबीर ये की थी कि इस तरह कुछ करो, इस तरह से कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कर देते हैं। किसी ने कहा कत्ल कर देते हैं, किसी ने कहा उसको दूर फेंक देते हैं, किसी ने कहा कुछ कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तय होने के बाद, यानी ये तो तय हो गया कि यूसुफ के साथ कल कुछ करना है। अब बाप को मनाना है। बाप को कैसे मनाएं? बाप को मनाने के लिए गए, बाबा जी हमें साथ भेजो, खेलेगा कूदेगा, ये सारे अल्फाज सूरत के अंदर है, और फिर ये सारा कुछ करेगा, हम इसके साथ अपने साथ ले जाएंगे, ये भी हमारे साथ रहेगा, हमारा भाई है, हम इसका ख्याल भी रखेंगे। तो हजरत याकूब ने क्या कहा? मुझे डर है कि तुम कहीं इधर उधर हो जाओ तो इसे कोई भेड़िया खा ना जाए। उन्होंने इसी बात को ही पकड़ लिया, यानी बाप की बात में से ही पॉइंट लेकर उन्होंने आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मामला किया। कोई फैसला तय नहीं हुआ था, सिर्फ ये तय हुआ था कि कल इसे अपने साथ ले जाएंगे, फिर इसके साथ जो करना होगा वो करेंगे। जब बाप ने कहा मैं नहीं भेजता कि कहीं ऐसा ना हो भेड़िया खा जाए, क्योंकि जंगलों में रहते थे वो लोग, ऐसे घर नहीं होते थे, हमारी तरह शहर नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़े भाई हैं, हम क्यों नहीं इसका ख्याल रखेंगे, आप हमारे साथ भेजे। फिर खैर इतना मजबूर करने के बाद बाप ने भेज दिया। आगे अल्लाह का हुक्म भी यही था, इसलिए बाप भी मजबूर हो गए और फिर उनके साथ चले गए। और यहाँ तक कि वो जब साथ लेकर गए तो रास्ते में ही फैसला किया कि इसे कुएं में फेंक देते हैं। और एक बड़े भाई ने ये बात की थी कि मारो नहीं, इसे कत्ल ना करो। उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ गया, और ये रहम किसने डाला था? अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि अल्लाह उसको बचाना चाहते थे। जिसको अल्लाह बचाना चाहे तो कोई भी जरिया बन जाता है। तो उसने कहा कि ऐसे करो, तुम इसे कुएं में डाल दो। और जब उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते हैं, कुएं में डाल दिया गया। और कुएं में डालने के बाद बाप के पास रात को आए, वो ईशा यबकून रोते हुए रात के वक्त आए और कहा अब्बा जी क्या हो गया? अब्बा जी ने पूछा, कहा उसको तो भेड़िया, यानी बहाना वही बनाया जो बाप ने बताया, भेड़िया खा गया। और उसकी कमीज पर खून लगाकर झूठा लेकर आए थे। तो अल्लाह के नबी हजरत याकूब अक्लमंद थे, फौरन समझ गए कि भेड़िया कैसा भेड़िया था कि जिसने कमीज को तो कुछ नहीं कहा, कमीज तो सही सलामत है, अंदर से जिस्म खा गया। यानी जिस्म को चीरने के लिए पहले कमीज भी तो फटेगी ना, लेकिन क्या थी, कमीज तो बिल्कुल सही सलामत हो। तो उन्होंने कुएं में डालने से पहले उसकी उतार ली थी। उस कमीज को उतार के उसके ऊपर झूठा खून लगा के उसको ले आए थे।
تو बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम बताओ क्या किया है, लेकिन वो ना बताए, कभी भी ना बताया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ढूंढते फिरे लेकिन ना बताया। अल्लाह की तरफ से काफिला गुजरा था, काफिले के लोगों ने कुएं में पानी के लिए हाथ डाला तो कुएं में डोल डाला तो डोल के साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रंजो गम में रखते हुए सब्र की तौफीक दी कि तुम गम न करो, तुम्हारे साथ अल्लाह है। यानी बचपन से ही नबियों के साथ खुशखबरियां भी वही के जरिए आया करती थी या कोई ना कोई बशारतें मिल जाया करती थी। तो बहरहाल जिस वक्त वो कुएं से निकाले गए तो भाई देख रहे थे, भाइयों ने देखा तो कहा कि चंद दिरहम में उसको बेच दिया, और वो उसको लेकर मिस्र में चले गए थे और मिस्र के बाजारों में उसे फरोख्त कर दिया। वहां पर उसको खरीदने वाला कौन था? अजीज मिस्र, यानी उस दौर का अजीज मिस्र था, जिसने उनको खरीद लिया और अपने घर ले आया और बीवी से कहा कि इसकी तरबियत करो, इसको खिलाओ पिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे हम अपना बेटा बनाते हैं, यह हमारे लिए कोई फायदे का बाइस बनेगा। यानी उनकी औलाद भी नहीं थी, इसलिए कहा बेटा बनाते हैं, और साथ में क्या कहा? हमारे लिए फायदे का बाइस बनेगा। अजीज मिस्र भी ज़हीन थे, कहते हैं कि उन्होंने इस बच्चे की सहानत चेक कर ली थी। उनको यानी कि जहां गुलाम बिक रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा गुलाम के काबिल नहीं है, ये बच्चा, इसके अंदर काफी काबिलियत है, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए फायदे का बाइस बन जाए। फिर उसको अपने महल के अंदर तरबियत दी, जंगी महारतें भी सिखाई। जंगी महारतों के साथ साथ इल्म हिकमत किसने दिया? अल्लाह कहते हैं जब जवानी को पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इल्म हिकमत यानी ख्वाबों की ताबीर भी और दनाई की बातें भी उन्हें सिखा दी। अब यहाँ पर जंगी तदबीरें करते हुए वहां पर क्या हुआ कि महल के अंदर कई निज़ाम इन्होंने संभाले, और उन निज़ामों में से एक दिन चोरी का मामला आया और वो भी खुल गया सारा। और इन्होंने कहा था, यानी अपनी जहानत से बताया कि कैसे चोरी, यानी मैं चोरी करने वाले के हाथ को काट दूंगा, तो आंखों पे बत्तियां बनवाई हुई थी, ये सारे मामला किए, यानी जहानत से अपने महल के सारे इंतजाम को संभालते रहे। यहाँ तक कि बचपन में भी इतने खूबसूरत थे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खूबसूरती का जिक्र आता है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि वो बहुत खूबसूरत थे। जवानी में आए तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। अब जाहिरी बात है कि जब अल्लाह ने अपने बेटे को ही अपना बेटा कहा है, नेपालिक को अपना बेटा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसी से ही हम देखते हैं कि क्यों नहीं कहा। कि वो बेटा होता अगर अजीज मिस्र की बीवी का तो उसके जहन में कभी भी गलत बातें ना आती, क्योंकि उसका अपना बेटा नहीं था। इसलिए उसके जहन में क्या आया? जैसे जैसे उसकी परवरिश करती थी, उसको अपने पास रखती, इधर उधर ले जाती, उसके दिल में कुछ और ही ख्यालात आते चले गए और उन ख्यालात को पुख्ता करती चली गई, यहाँ तक कि वो जवान हुए और इस उम्र को पहुंच गए तो उनके दिल में जो ख्यालात थे उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसे अपने कमरे में बुलाया। और उस कमरे के हवाले से क्या आता है कि वो कमरा इतना दूर था कमरों के अंदर कि उसने उसी के अंदर अपने यानी हजरत यूसुफ को बुलाया और उसे कहा कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो फिर भी तेरे लिए सख्ती है, और अगर तूने मान ली तो फिर भी तेरे लिए काफी नवाजिशें होंगी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे अपने रब से डर लगता है। तो उसने कहा कि रब तो यानी उनके रब क्या होते थे? बुत होते थे। उसने बुतों के ऊपर पर्दे डाल दिए कि मैंने रब को छुपा दिया। उसने कहा मेरा रब ये नहीं है, मेरा रब तो वो है जो सब कुछ देखता है। तो बहरहाल अल्लाह के हुक्म से उनके अंदर भी ये बात आई कि तुम ये यानी कि अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे खोलते चले जाओ, यानी दरवाजों पे हाथ रखते चले जाओ और दरवाजे खुलते चले जाएंगे, ये अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे लिए। जिस तरह अल्लाह के नबी को कहा कि तुम हाथ में मट्टी ले लो और मट्टी फेंको, ये सब क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह ने हजरत यूसुफ के साथ क्या किया कि हजरत यूसुफ से कहा कि दरवाजों पे हाथ रखो। कि वो कफल लगे हुए थे, कफल भी इतने मजबूत लगे होते थे क्योंकि बादशाहों के महलों के कफल भी बड़े मजबूत होते थे। हजरत यूसुफ अल्लाह के हुक्म से हाथ रखते चले गए और दरवाजे खुलते चले गए। जब दरवाजा खुला तो देखा कि अजीज मिस्र को दरवाजे के पास पाया। अजीज मिस्र की बीवी जब उसके पीछे भागती आ रही थी, पीछे से पकड़ने की वजह से उसकी कमीज फट चुकी थी। अब जब उसने अपने खामन को देखा तो कहने लगी क्या है सजा उसकी जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता हो। अब पैंतरा बदल दिया उसने कि बताओ अब इसका क्या तुम इलाज करोगे। तो बहरहाल उसने यानी कि अपनी तरफ से बड़ी मजबूत मजबूत दलीलें देने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ की गवाही किससे दी थी? कहते हैं कि अजीज मिस्र की बीवी के कुछ मेहमान थे,
वही महल में मौजूद थे। उसमें एक छोटा बच्चा था, उसी छोटे बच्चे ने यानी गोद में दूध पीते बच्चे ने बोल कर बताया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या गवाही दी थी, अगर है कमीज आगे से फटी हुई तो यूसुफ झूठा है, यानी यूसुफ ही बुराई का इरादा रखता था, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो अजीज मिस्र की बीवी बुराई का इरादा रखती थी। अजीज मिस्र ने जब देखा तो कमीज तो पीछे से ही फटी हुई थी, समझ गए। बीवी फिर भी ना मानी, मक्कर करती रही, चालें बनाती रही। अब वहां से हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने हटा लिया। अब वो हजरत यूसुफ खुद भी परेशान है कि मेरे साथ ये क्या मामला हो गया। लोगों में बात फैलती चली गई। ये बात ऐसी थी कि एक ने सुनी, दूसरे से तीसरे में बात फैलती चली गई, यहाँ तक कि मिस्र के सारे बाजार में ये बात मशहूर हो गई। और अजीज मिस्र के यानी मिस्र के जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी बीवियां मुंह में हाथ डाल के कहती कि चुना भी किसको, एक गुलाम को, अपने जैसा तो कोई बंदा चुनती, यानी अपने स्टैंडर्ड का तो ढूंढती। तो बहरहाल जब उसकी बातें उन तक पहुंची तो उसने कहा अच्छा मैं भी इनके लिए एक चाल चलती हूँ। फिर उसने चाल चली कौन सी कि उनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, और फिर अपनी कनीज से कहा था कि जब मैं तुम्हें हुक्म दूं तो हजरत यूसुफ को आरास्ता करके, खूबसूरत तो पहले ही है, खूबसूरत लिबास सारा रास्ता करके इन औरतों के सामने ले आना। फिर उसने दावत में खाने के लिए सबसे पहले फ्रूट्स और छुरियां रख दी कि खुद ही काटेंगे खाएंगे, मसनदों पे बिठा दिया खूबसूरत छुरियां और फल उनके आगे रख दिए, और फिर उन्होंने छुरियां खाई फल काटने के लिए, यहाँ तक कि हुक्म किया कनीज को कि ले आओ हजरत यूसुफ को। हजरत यूसुफ को जैसे ही लाया गया तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने हजरत यूसुफ को देखते हुए बजाय फल काटने के अपने हाथ काट रखे, यानी नीचे नजर ही नहीं गई क्या कहाँ काटना है, छुरी कहाँ फेरनी है, यानी अंगश से बदना जैसे हम हैरान हो जाते हैं। तो हैरानगी में क्या हुआ, हजरत यूसुफ को देख के कहने लगे कि नहीं ये कोई बंदा नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो यानी इतनी बड़ी बात कही, कहा तुम इसी के बारे में मुझे कहती थी, अब खुद देखो तुमने क्या कर लिया। यानी उसने अपने इल्जाम को खत्म करने के लिए उनके साथ लिया। अब ये सारी मुलविस हो गई, यानी कहने का मकसद है कि अब उनके मुंह भी उसने बंद करवा दिए। यहाँ तक कि फिर भी वो हजरत यूसुफ के पीछे थी कि यूसुफ तुम अगरचे मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने रब से सरगोशियां की कि अल्लाह मुझे इन चालों से बचा ले और मुझे कैद ही बेहतर है, कैद में ही डाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म भी यही था, अल्लाह ने उन्हें जेल खाने में भेज दिया, क्योंकि जेल खानों की भी, महल की तो काफी लोगों की तरबियत हो चुकी थी, अब जेल खाने की तरबियत के लिए अल्लाह ने भेजा। इंसान को अल्लाह जहां भी भेजता है ना, उससे कोई काम लेना चाहता है। हम ये ना सोचे कि अब ये मुश्किल है। और ये देखे कि मैं तो अक्सर एक दो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जब पाबंदी होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको जेलों में डाल दें, तो मैं कहती हूँ अल्लाह का हुक्म होगा तो जाएंगे। और ये तो अंबिया की एक किस्म का विरसा है, हम जाएंगे तो दीन के लिए जाएंगे ना, दीन के लिए तो और लोग भी गए। इमाम अहमद हम्बल को कैद किया गया, इसी तरह आप ससम को शेब अबी तालिब में 3 साल के लिए कैद किया गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हजरत यूसुफ को भी कैद में डाल दिया गया एक लंबे अरसे तक, जब तक अल्लाह ने चाहा। अब कैद के अंदर भी उन्होंने जेल के साथियों के साथ बनाई, उनकी तरबियत की, जेल के मामलात सुधारे, यहाँ तक कि जेल का जो सबसे बड़ा था वो भी बड़ा खुश हो गया यूसुफ से। और जब अजीज मिस्र ग्राउंड पे आते हैं तो उनसे कहता है कि तुमने तो बड़ा नायाब बंदा भेजा है, गुनाह क्या किया इसने, यानी हमें तो नहीं लगता कि वो गुनाह करने वाला बंदा है। तो वो कहते थे बस तुम इस मामले को नहीं छेड़ो, मुझे भी पता है कि कितना नायाब बंदा है, दूर से उससे देखते खुश होते और चले जाते कि मैंने तो तुमसे बहुत बड़े काम लेने थे, लेकिन मेरी बीवी ने ही तुम्हें दूर हट कर दिए मुझसे। उन्हें अपने यानी अजीज मिस्र को उन्हें बेटे की तरह ही मोहब्बत थी। तो यहाँ यानी कि जेल के अंदर भी एक मामला हुआ कि 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए उसके पास आए कि हम तो तुम्हें सच्चों में से पाते हैं। तो उसने कहा मैं ख्वाब की ताबीर तब बताऊंगा जब तक कि खाना ना आ जाए, खाने में मैं तुम्हें बताता हूँ आज मछली आएगी। जैसे उसने ये कहा तो लोग हंसने लगे कि देखो कैद के साथियों को भी मछली कभी नसीब होती है। और वाकईतन उस दिन मछली थी खाने में, तो उनका ईमान और भी बढ़ गया कि ये तो जो कहा इसने सच हो गया। फिर उन्हें कहा कि मेरी बात को तुमने सच मान लिया, उसने कहा मैं जो कहूंगा तुम उसे सच मानोगे। उन्होंने कहा ठीक ठीक। तो उससे पहले अल्लाह की दावत दी कि एक रब ज्यादा बेहतर है या माबूद बेहतर है, यानी मुतफर्रिकून फर्के वाले अलग अलग रब तुम्हारे लिए बेहतर है, अरबाबु मुतफर्रिकून क्या बहुत से खुदा तुम्हारे लिए बेहतर है या अकेला वाहिद ला शरीक।
वो सब मान गए जब उन्होंने इतराफ कर लिया कि अल्लाह वहदहु ला शरीकी है और ये झूठे माबूद हैं, सारा कुछ है, क्योंकि मिस्र के अंदर पूरे शिर्क फैला हुआ था। तो ये इन दोनों को तौहीद की तरफ लाए और उसके बाद उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से जिसने एक ने जो ख्वाब देखा है कि मैं शराब पिला रहा हूँ, यानी पानी पिला रहा हूँ और मैं वो नोचता हूँ, उसमें से रस निकलता है और मैं पिलाता हूँ। वो साकी था, बादशाह को साकी यानी शराब पिलाया करता था। तो उसे बताया कि दोबारा तुम अपने ओहदे पर वापस लौट जाओगे। और दूसरे के बारे में क्या देखा कि उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटियां पड़ी हैं, खाना पड़ा है और परिंदे उसे नोच रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। तो उन दोनों की ख्वाबों की ताबीर सेम यही हुई थी। उसको सूली पर लटका दिया गया था और जब उसको सूली पर लटकाया गया और साकी को वापस भेज दिया गया, शराब पिलाने लगा, तो वो अब उसके ख्वाबों से और भी ज्यादा मुतासिर हुए। और जब वो वहां से जाने लगा था जेल से साथी से, उसने कहा था कि ए मेरे जेल के साथी, तुम मुझे बाहर जाकर भी याद रखना और बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। लेकिन तुम मुझको जान चुके हो ना मेरे बारे में, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता था कि अभी जिक्र हो, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे क्या किया, फानसाहु शैतान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भुला दिया। और फिर वो कई अरसे तक उसने भी इस बादशाह के सामने जिक्र नहीं किया। और जब बादशाह के सामने जिक्र किया तो कब किया, जब बादशाह ने भी ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा 7 मोटी गायें 7 दुबली पतली गायें को खा रही हैं। इसी तरह जब ख्वाब की ताबीर पूछी तो कोई भी ख्वाब की ताबीर देने वाला ना था। फिर इसको याद आया कि हमने भी ख्वाब देखे थे और हमने भी ताबीर पूछी थी और हमारी ताबीर बिल्कुल वही हुई थी जो उसने बताई थी। तो कहा मुझे कैद में भेजो, मैं तुम्हारी ख्वाब की ताबीर बादशाह लेकर आऊंगा। एक बंदा है कैद खाने में जिसने हमारे ख्वाबों की ताबीर भी बहुत अच्छी बताई थी। तो यूं यानी कि ये सारा मामला चला था और वो कैद में गए और उनसे कहा मुझे ये ताबीर बतानी है। तो उसने कहा मैं उसकी ताबीर उस वक्त बताऊंगा जब जाके बादशाह के सामने मेरा जिक्र करो और मेरे सारे मामला बताओ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और उन औरतों के बारे में पूछे। मैं अपने ऊपर इल्जाम को पाक करके फिर यहाँ से निकलूंगा, वरना मैं ऐसे नहीं होऊंगा। फिर ये मामला बादशाह के सामने खुला। पहले तो अजीज मिस्र के दरबार तक ये मामला दब गया था, अब असल बादशाह तक ये सारा मामला गया। तो बादशाह ने सारे मामले उनसे पूछे। तो यहाँ तक 12वां पारा मुकम्मल हो रहा है।